Hello students, welcome to the another lecture related to the fractions and decimal. We were doing fractions and decimal. Today we will study about the multiplication of fraction. So it is chapter 2, class 7th. Topic is multiplication of integers. Multiplications of fractions. Suppose let's take an example related to this topic. Suppose if there is two fractions like 7/2 and 3/2 और आपको मल्टीप्लाई करना है 7/2 मल्टीप्लाई 3/2. सो in multiplication or division, no need to take LCM, no need to take make their denominators equal. Here already denominators are equal, but if they are not equal, then also we will do the same process. Like we will multiply numerator to numerator and the denominator to denominator. This time you will multiply denominators. ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, आपका जो एलसीएम होता था, जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर होता था, वो सिर्फ एक ही बार आप उसको एलसीएम एज ए एलसीएम लिखते थे. बट यहाँ पर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है. तो आपका आंसर होगा 21 डिवाइड बाय 4. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लाइक सपोज देयर इज़ 4/3 एंड 5/6 और आपको मल्टीप्लाई करना है 4/3 मल्टीप्लाई 5/6. So again you will multiply numerator to numerator and denominator to denominator. It is 20/18. Very simple. कोई इसके लिए आपको कोई भी लॉन्ग कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है. इजीली आपको सिर्फ होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है like that. अब सपोज this is the your answer. This is 20/19. It can be minimized like it is 10/9. दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इसको 10/9 भी लिख सकती हूँ. दिस इज़ द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस. सो दिस इज़ द आंसर. हियर वी डिड मल्टीप्लाई ऑफ 2 फ्रैक्शंस इफ देर इज़ 1 होल नंबर एंड 1 फ्रैक्शन. लेट्स डू that one. Multiplication of a fraction by a whole number. Of a fraction by a whole number. So suppose 2 and 7/4. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. So 2 is a whole number, 7/2 is a fraction. So you will multiply them simply. You will write it like that. And so whole number has no denominator. तो इसमें आप क्या करोगे, होल नंबर से सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर विल कम एज इट इज़. सो योर आंसर विल बी 14/4 और इट कैन बी मिनिमाइज लाइक 7/2. और आप इसको एक ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे. दिस इज़ द होल नंबर से आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आपका आंसर 7/2 बच जाएगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपको ये टफ लगता है, आपको ये आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जस्ट होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपने आंसर को आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज देयर इज 2/7 multiply 3. So as I told you, you will multiply whole number to the numerator. Whole number and numerator and denominator will remain as it is. So it will be 6/7. Okay, let's take another example. Like suppose 9/7 multiply 6. तो अगेन होल नंबर कि आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा. 54/7. This is your answer.
So multiplication of fractions or integers, fractions or whole number or fraction is very easy. There is no any need to do any long calculation. Just multiply numerator to numerator and denominator to denominator. If there is two fractions and if there is one fraction and one whole number, then you will multiply them in this way. Like you will multiply the whole number to the numerator and denominator will remain as it is. Now let's start the exercise. Exercise of fraction and decimal. Now we are going to start exercise. (2.2). Question number 1, exercise 2.1 is on the screen. Which of the following drawing A to D shows? Means this is the relation 2 into 1/5 और आपको select करना है A B C D में से कौन सी ड्राइंग 2 into 1/5 शो कर रही है. 2 मीन्स आपकी 2 फिगर्स होनी चाहिए. सो यहाँ पे आपकी 3 फिगर्स हैं, यहाँ पर आपकी 2 फिगर्स हैं और यहाँ पर आपकी 3 फिगर्स हैं, इसमें आपकी 2 फिगर्स हैं. सो 2 × 1/5 आपकी 2 फिगर्स होनी चाहिए. तो आपका ऑप्शन या तो बी होगा या फिर डी होगा, जो कि 2 × 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है. मल्टीप्लाई 1/5 और ईच फिगर 5 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. टोटल फिगर्स 2 होनी चाहिए और ईच फिगर आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. यहाँ पर आपके बी ऑप्शन में आप देखेंगे आपकी ईच फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ईच फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बट इन डी पार्ट्स ईच फिगर हैज़ डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स. सो द डी फर्स्ट वाले को, दैट इज़ 2 × 1/5, उसको डी रिप्रेजेंट कर रहा है. डी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है. डी ड्राइंग इज रिप्रेजेंटिंग टू द 2 × 1/5. Let's see for the second part. In second part again 2 फिगर्स होनी चाहिए. तो डी ऑप्शन तो आपका ऑक्यूपाई हो गया है, इसको आप नहीं देखेंगे. रेस्ट 3 में से सिर्फ बी है जिसमें आपकी 2 फिगर्स हैं और ईच फिगर आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट. सो 2 × 1/2 इज़ रिप्रेजेंटिंग द बी ड्राइंग. Let's check third one. There should be 3 figures. So आपके 2 ऑप्शंस बचते हैं, दोनों B और D आपका हो चुका है. तो A और C है और उसमें आपका 2 out of 3 मीन्स जो आपका शेडेड पोर्शन है वो 2 होना चाहिए आउट ऑफ 3 में से. मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए फिगर को. 1 2 3 1 2 3 3 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं सारी फिगर्स. और आउट ऑफ दीज 3 आपके 2 पोर्शन शेडेड हैं. यहाँ पर ये वाले 2 शेडेड हैं, यहाँ पर आपके ये वाले 2 शेडेड हैं और इसमें भी आपके 2 पोर्शंस शेडेड हैं. सो 3 × 2/3 इज़ रिप्रेजेंटिंग द A drawing. Next and last is 3 figure. There are 3 figures and 1 out of 4 must be shaded. 4 में से 4 फिगर में से 1 2 3 4 4 फिगर में से आपका 1 शेडेड होना चाहिए. तो दिस इज़ द करेक्ट ड्राइंग फॉर द 4th पार्ट. 3 × 1/4, this is the 4th part. This was the 3rd one. It is representing the C drawing. It is representing the C drawing. So question 1 is completed. Let's do the next question. Question number 2 of the same exercise. This is the question. Question is on the screen. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर अभी 1 कंप्लीट किया था. देखते हैं. सम फिगर्स A to C. देयर आर 3 फिगर्स A to C.
This is A, this is B. I think C is missing in this picture. No, this is A, this is B, and this is the C. A, B, and C. A to C are given below. Tell which of them shows 3 multiply 1 by 3. 3 multiply मीन्स आपकी 3 फिगर्स होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपकी 2 फिगर्स हैं. यहाँ पर इसमें आपकी लेफ़्ट साइड में 2 फिगर्स हैं, यहाँ पर आपकी 3 फिगर्स हैं और यहाँ पर 3 फिगर्स हैं. तो फर्स्ट रिलेशन को या तो आपका बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर सी रिप्रेजेंट करेगा. 1 आउट ऑफ 5 और ईच फिगर 5 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए और उसमें से 1 शेडेड होना चाहिए. तो हेयर 1 2 3 4 5 ईच फिगर is divided into the 5 parts and out of them only 1 part is shaded. So this is the correct option for the first part. C is representing the A1. So I will write here answer. 3 multiply 5 represents the figure C. So let's check with the second one. 2 figure होनी चाहिए. So there is only this one, this option which has 2 figures. तो आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के लिख सकते हैं कि आपका जो A है वो सेकंड वाले रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कैसे कर रहा है ये भी देख लेते हैं. 2 there must be 2 total in figure in total is 2 and 1 out of 3 it must be divided into 3 equal parts and 1 out of 3 is shaded. So this is the answer for the second one. ये जो आपका इज इक्वल टू वाला साइन है वो आपका इज इक्वल टू वाला जो 2/3 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको दोनों एक साइड से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. 2 multiply 1/3 रिप्रेजेंट फिगर A. Let's do the third part. So there is only one option which is remaining, second B. So it represent it, this one. There are 3 parts in total. Yeah, there are 3 figures and each figures is divided into 4 equal parts. 1 2 3 4 equal parts and out of them 3 are shaded. So these 3 are shaded. So this is the correct representation of the relation third. So that is 3 multiply 3/4. 3 multiply 3/4 is represents figure B. Question number 2 complete हो गया है. Let's do the next question of this exercise. Question number 3. Multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में एंड देन आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो आपके इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. So let's do the first part of this question. 7 into 3/5. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीप्लाई करना है. तो अभी हमने सीखा है जब आप एक यहाँ पे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो मीन्स होल नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ आएगा. तो इट इज़ 21/5. अब आप देखिए 21 एंड 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 21 और 5 दोनों आते हैं. तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म इटसेल्फ है, लोएस्ट फॉर्म में ही है. तो आपको मैं इसको और फर्दर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको बिकॉज इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप रफ वर्किंग करेंगे, डिवाइड करेंगे. 5 4 20, 1 रिमाइंडर. सो आप क्या करेंगे इसमें आप ऐसे इसको इस रोटेशन में आपका आएगा 4 होल 1/5. दिस इज़ द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ दिस 21/5. फर्स्ट पार्ट इज़ completed. लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. 4 होल 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे. 4 multiply 1/3 इज इक्वल टू 4/3. ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी. तो आप इसको क्या करेंगे अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 4 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर. सो 1 होल 1/3 इज़ योर आंसर. दिस इज़ द मिक्स्ड फॉर्म.
Let's do the third part. Third part is 2 whole 6 by 7. 2 whole 6 by 7. So you will multiply 2 into 6. 7 will remain as it is. 12 by 7. ये ऑलरेडी आपकी लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि 12 7 का मल्टीपल नहीं है. तो आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 को 7 से डिवाइड करेंगे और फिर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. 12 को आपको 7 से डिवाइड करना है. 7 1 ज़ा 7, आपका 5 रिमाइंडर होगा. सो 1 होल 5 बाई 7. दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म. Third part is completed. Let's do the fourth part of the same question, that is 5 multiply 2 by 9. 5 multiply 2 by 9. So 5 multiply 2 by 9 is, you will multiply 5 into 2 divide by 9 will come as it is. 5 2s are 10 by 9. Itself it is in lowest form. फिर आप इसको सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 9 1 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर. सो 1 होल 1 बाय 9. दिस इज़ द मिक्स्ड फॉर्म. लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट. 2 by 3 मल्टीप्लाई 4. 2 by 3 मल्टीप्लाई 4. अगेन यहाँ पर होल नंबर है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 by 3 लोएस्ट फॉर्म है बिकॉज 8 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3. जस्ट आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर. सो इट इज़ इक्वल्स टू द 2 होल 2 by 3. दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ योर आंसर. Let's do the next, and that is sixth part. 5 by 2 multiply 6. 5 by 2 multiply 6. So 5 by 2 multiply 6 is 5 multiply 6 divide by 2. अब आप देखिए 5 6 ज़ा 30 by 2. अब यहाँ पर आपका 2 32 का मल्टीपल है. मीन्स आप 2 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं. 15 होता है. तो 15 आपका आंसर है बिकॉज देयर इज़ नो डिनोमिनेटर. सो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं. ये आपका एक होल नंबर है. दिस इज़ योर आंसर. 15 इज़ योर आंसर. आप सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को. सो यहाँ पर आपका जो आंसर है 15, दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज़ अ होल नंबर. सो इट विल रिमेन एज इट इज़ एंड दिस इज़ ओनली योर आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट एंड सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 11 मल्टीप्लाई 4 by 7. 11 मल्टीप्लाई 4 by 7. सो इट विल बी 11 मल्टीप्लाई 4 न्यूमरेटर में रहेगा, 7 नीचे आएगा. इट इज़ 44 by 7. अगेन 44 7 का मल्टीपल नहीं है तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते. मीन्स ये ही अपनी लोएस्ट फॉर्म में है तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 6 ज़ा 42, 2 रिमाइंडर. सो it will be 6 whole 2 by 7. That is your answer. Let's do the eighth part. What is the eighth part? Eighth part is 20 multiply 4 by 5. 20 multiply 4 by 5. 20 multiply 4 divide by 5. 24 is 80 divide by 5. अब 85 का मल्टीपल है. आप 80 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 16 आपका आंसर होगा. अगेन आपका आंसर एक होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं. नाइन्थ पार्ट इज़ 13 मल्टीप्लाई 1 by 3. 13 मल्टीप्लाई 1 by 3. तो 13 मल्टीप्लाई 1 होगा और 3 आपका एज इट इज़ आएगा. 13 1 ज़ा 3 by 3. अब आपका 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है. 3 के टेबल में 13 नहीं आता है तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है और आपको अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो इट इज़ 33 डिवाइड बाय 3. इट इज़ 13.
3 2s are, sorry, it is 4s are, 3 4s are 12, 1 remainder, so 4 whole 1 by 3. This is your mixed fraction or answer of this question. Let's do the next and the last part of this question, that is 10th question. 15 multiply 3 by 5. 15 multiply 3 by 5. तो आप इसको 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 5 आपका डिनोमिनेटर होगा. 15 3 इज़ 45 डिवाइड बाय 5. अब आप देखिए 45 5 का मल्टीपल है. जब आप 5 का टेबल रीड करते हैं तो क्या 45 आता है? येस. 5 9s are 45. सो अगेन योर आंसर इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन. So this is your answer. It cannot be written as in the mixed fraction. So this question is completed. It was the question number 3 of this exercise. Let's end the video here. Otherwise video काफ़ी लंबी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. So thank you so much. Thanks for watching.